Okay guys, this is Hitesh Tripathi and these are editorial videos of at Coder Beginner Contest 192 question A. Okay, so in this question we are having Takahashi is playing a game. Okay, in this game each time is number of coins have you have collected so far becomes a multiple of 100, you get a prize. Okay, Takahashi has collected X coins so far. How many more coins does he need to collect before he gets next prize? If X is multiple of 100, we assume that he has already got the prize for collecting X coins. Okay, fine. So we have X coins and we have to tell how many more coins we have to collect the next prize. Okay, and if X is already a multiple of 100, then in this case also we have to tell next multiple of X. Okay, fine. So as we know that we get next multiple of X in worst case in 100 times. After every 100 coins we always get a multiple of 100. Okay, so हम क्या करेंगे, हम सिंपली लूप कर लेंगे x से. ठीक है, 1 सेकेंड. हम सिंपली क्या करेंगे, हमें हर 100 के बाद एक x का मल्टीपल तो मिलेगा ही, मतलब 100 का मल्टीपल तो मिलेगा ही x. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली लूप कर देंगे क्योंकि वर्स्ट केस में भी 100 टाइम्स ही लूप चलेगा. ठीक, तो आंसर में प्लस प्लस करते जाएंगे और x में भी प्लस प्लस कर देंगे. ठीक है, और जैसे ही x मॉड्यूलो 100 होगा वैसे ही ब्रेक कर देंगे. ठीक है, फाइन. क्वेश्चन बी, we call a string hard to read when its odd position is 1 to 3 5 and are lowercase English letters and even positions are uppercase English letters. So it is quite obvious. ठीक है, odd positions में lower case check करना है और even positions में upper case. Okay, so in question C, Capricorn number, okay, where G1 is the integer obtained by rearranging the digit in decimal notation of x in descending order. So if we have some number 314, then arranging its digit in descending order will be 413, 431. Okay, so G1x will be 431. G2x is arranging its digit in ascending order, means it will be 134, and fx will be G1x minus G2x. So obviously greater number minus smaller number. ठीक है, now we have three numbers n, k, two numbers n and k. We have to find value of ak. Okay, value of ak, here we have an equation ai plus 1 is equals to f of ai. So ak will be equals to f of ak minus 1. Okay, so we have to loop for value of ak till I does not belong equals to 0. ठीक है, जैसे ही I is equals to 0 होगा we have value of a naught is equals to n. Okay, so we simply have to recurse till I does not belongs to 0. Okay, so we simply have to recurse here. We have this gx function where we will calculate value of fx. Okay, तो मैंने क्या किया, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और t1 में वैल्यू डाली, फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और t2 में वैल्यू डाली और एब्सोल्यूट ऑफ t2 माइनस t1, ये fx की वैल्यू हो गई. ठीक, फिर रिकर्स कर दिया फाइल k माइनस माइनस टाइम्स k टाइम्स रिकर्स कर दिया. k टाइम से रिकर्स होगा. ठीक है, तुम दूसरी कंडीशन में ब्रेक भी कर सकते हो रिकर्शन को कि i इज इक्वल्स टू 0 होगा तो ब्रेक कर दो. मैंने i इज इक्वल्स टू g ऑफ i बना दिया और c आउट i कर दिया. ठीक है, क्वेश्चन डी, बेस इन, given a string x consisting of 0 to 9 character. ठीक है, 0 to 9 types of characters होंगे, 10 types of characters and an integer m. okay, let's d be the greatest digit in x. तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है x, उसमें जो d है वो ग्रेटेस्ट डिजिट है x की. ठीक है, how many different integers not greater than m can we obtain
by choosing an integer n not less than d plus 1 and seeing x as base n number. Okay, so we have one digit m, okay, and we have one digit d. We have another digit d which is greatest digit in string x. okay, so let's say अब हमारी string 2 है, ठीक है, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ग्रेटेस्ट डिजिट। अब हमें क्या करना है, एक वैल्यू चूज करनी है n नॉट लेस देन d प्लस 1। इट मीन्स वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू d प्लस 1, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें डिफरेंट नंबर्स नॉट ग्रेटर देन m seeing that x as base n number। ओके, तो यहाँ पे आओ, फर्स्ट टेस्ट केस देखो, d की वैल्यू हमारी क्या है 2 है, ठीक, हमें d प्लस 1 से बेस देखना है, तो हम d प्लस 1 3 से बेस देखना शुरू करेंगे। बाई सीइंग x as base 3 नंबर वी गेट 8, 8 इज लेस देन 10 और इक्वल्स टू 10, इट मीन्स एक नंबर 8 हो गया। सेकेंड, we will check for base 4, similarly we will check for base 5, base 10, base 20, base 100, base 1000 तक हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब कहीं पर कोई नंबर आएगा x as base 1000, वो क्या होगा, वो m से बड़ा होगा, तो वहीं पर हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो हमें टोटल नंबर बताने हैं लेस देन और इक्वल्स टू m, ठीक है, फाइन। वन थिंग वी नो कि जो x है वो क्या होगा, ऑब्वियसली जैसे जैसे उसका बेस बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो वी कैन से दैट हमारे आंसर में हमें एक तरीके से हमें क्या काउंट करने हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ बेसेस ग्रेटर देन d प्लस 1, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू d प्लस 1, हमें नंबर ऑफ बेसेस, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू d प्लस 1 जिसमें x को बेस n ने देखे तो लेस देन और इक्वल्स टू m की वैल्यू आए। ओके, फाइन। अब हमें मतलब नंबर ऑफ बेस की वैल्यू निकालनी है, कितने नंबर ऑफ बेसेस होंगे, जिसमें हमारी जो लोअर लिमिट है वो है d प्लस 1, मतलब कि ये ऑलवेज d प्लस 1 से बड़ा होगा, ठीक है। लोअर लिमिट कितनी है d प्लस 1। अपर लिमिट कितनी हो सकती है तुम्हारी, अपर लिमिट देखो ज्यादा से ज्यादा बेस कहाँ तक जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा बेस m तक जा सकता है, ठीक है। बेस m से बड़ा जैसे ही होगा वैसे ही तुम्हारी वैल्यू, तो ये तो पक्का ही पक्का है कि m से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है 10 raised 18, सो यू कैन टेक अपर लिमिट एज 10 raised 18, ठीक है। अब तुम्हें क्या सिंपली करना है, तुम्हें सिंपली l से r में क्या करना है, एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेस निकालनी है, बेस की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है सच दैट जब तुम x बेस, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है मैक्स निकालोगे वो लेस देन और इक्वल्स टू m आए, है ना। तुम्हें ये करना है, तो एक रेंज तुम्हें गिवन है, ओके, और तुम्हें उस रेंज में किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या यूज करते हैं, बाइनरी सर्च यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली d प्लस 1 से 10 raised 18 में बाइनरी सर्च लगाएंगे और मिड के लिए चेक करेंगे कि मिड बेस वो x बेस मिड इफ लेस देन और इक्वल्स टू m है, इट मीन्स वी कैन स्टिल इंक्रीज अवर बेस, तो हमारा लेफ्ट क्या हो जाएगा मिड प्लस 1, और अगर x बेस मिड इज ग्रेटर देन m है तो हमारा राइट क्या हो जाएगा मिड माइनस 1, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ गई कि x बेस n कैसे निकालना है। x बेस n निकालने का स्टैंडर्ड तरीका भी होता है, मतलब स्टैंडर्ड क्या, वही एक ही तरीका होता है, तुम सिंपली GFG कर लो अगर तुम्हें और इसके बारे में पढ़ना है।
ये रहा, ठीक है, ये रहा फंक्शन। ये डेसिमल में कन्वर्ट करना है किसी भी बेस को, ठीक है। तुम करके देख लेना, ये फंक्शन चला के देखना, तो तुम्हें जैसे ही 23 को तुम डेसिमल में कन्वर्ट करोगे बेस 3 के, तो वैल्यू 8 मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट तुम यहाँ देख सकते हो। सिंपली बस एक चीज समझ लो कि डेसिमल इक्विवेलेंट टू एनी बेस इज लास्ट कैरेक्टर इंटू 1 प्लस बेस इंटू base raise 0 into last character base raise 1 into second last base raise 2 into third last up to string length, ठीक है। ये होता है तुम्हारा डेसिमल के इक्विवेलेंट। तो तुम्हें सिंपली अब क्या लगानी है, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च तुम, ये रही, ठीक है, ये तुमने स्ट्रिंग ली, ये तुमने m की वैल्यू इनपुट ली, ये d है, x में मैक्सिमम कैरेक्टर निकालना है, ठीक है। तो मैंने स्ट्रिंग को पहले क्या किया, उसमें चेंज कर लिया इंटीजर में, फिर लूप किया और d को अपडेट कर दिया एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग के, ठीक है। अब एक एच केस आता है, इफ x इज इक्वल्स टू x डॉट साइज इज इक्वल्स टू 1 है, मतलब कि जो तुम्हारी मेन स्ट्रिंग है उसका साइज 1 है, ठीक है। तो उस केस में तुम्हारी डेसिमल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली स्ट्रिंग के इक्वल। अगर साइज स्ट्रिंग की लेंथ ही 1 है तो तुम किसी भी बेस में जाओ उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो सिमिलरली आंसर कितना हो जाएगा, अगर d लेस देन इक्वल्स टू m है तो आंसर 1 है ना, और अगर d ग्रेटर देन m है तो आंसर 0। फाइन। अब तुम्हें बाइनरी सर्च लगानी है, तो ये थोड़ा सा उल्टा लिखा है, तुम्हें बस सिमिलरली l और r लेने हैं, वाइल l और r उल्टे लिए गए हैं, ठीक है। मिड ले लिया ये l प्लस आर बाई 2, ठीक, और वैल्यू इसमें तुम अपनी बेस n की वैल्यू निकालोगे, पूरी स्ट्रिंग में चले, पूरी स्ट्रिंग में बेस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर उतनी वैल्यू ऐड कर दी अपनी मेन वैल्यू में। फाइनली चेक किया तुमने कि वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल्स टू m है तो तुम्हें क्या करना है, r को m मिड प्लस 1 कर देना है, और अगर वैल्यू ग्रेटर देन m है तो तुम्हें सिमिलरली l को मिड माइनस 1 कर देना है। आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा, फाइनल बेस जो तुम्हें मिला है, ठीक है, मैक्सिमम बेस l माइनस d, क्योंकि मिनिमम बाउंड तुम्हारा कितना था d प्लस 1, ठीक है। So thank you guys for watching this video. If you have any doubt you can ask in comment section. Subscribe this channel for more and like this video also. Thank you.